Name is Amitabh Wadhwa, top of the hour. Let's get you the updates as Prime Minister Narendra Modi is all set to visit the Mahakumbh on the 5th of February, where he is expected to take part in the Shahi Snan or in the Amrit Snan, where preparations are on in full swing for his visit, as authorities have been making arrangements for this significant event. The Prime Minister, who is expected to take the holy dip in the river Ganga, will be performing Aarti in the river and also will be offering prayers. As far as the Mahakumbh coming after a period of 144 years, this is a big development that we are getting to know, that the Prime Minister is to take the holy dip in the Sangam, the confluence of the Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati in the ongoing Mahakumbh Mela in Prayagraj, and this is being said that will happen on the 5th of February. Now, arrangements that have been made, of course, as far as the UP Chief Minister himself, just last week was with his full cabinet taking the holy dip and holding the first cabinet meeting in the ongoing Mahakumbh as well. There are also reports suggesting that the Union Home Minister may also visit the Mahakumbh to take the holy dip in Sangam. However, we are looking at the prayers at the banks of the Ganga and the developments that are now likely to continue with the Prime Minister's visit that would be taking place on the 5th of February. So the officials which are gearing up to manage the huge crowds of devotees that are expected to arrive, the Mahakumbh that has been continuing, but when it comes to the occasion of next Shahi Snan or Amrit Snan, which falls on Mauni Amavasya, which is on the 29th of January, and the next one that would be taking place on the occasion of Basant Panchami, which is on the 3rd of February. So let's get in a word from Akansha, who is joining us live right now from Prayagraj. Akansha, preparations are on in full swing. What more can you tell us for the upcoming visit of the Prime Minister to Mahakumbh? Well, absolutely, Amita. Preparations are underway for this grand visit of the Prime Minister. Remember, he had also come to Prayagraj to inaugurate several initiatives for Mahakumbh Mela in December, where he had launched several projects. Now, 2 days after Basant Panchami, that is on February 5th, Prime Minister is all set to arrive in Prayagraj in Mahakumbh Mela. He will be visiting the VIP Ghat and he will be doing the Snan. He will also do prayers at the Ghat as well, is what we are learning. Then he will move towards Akshay Vat and then go to Hanuman Mandir. Exactly what he did when he came to Prayagraj in December is what we are learning. But there are a lot of arrangements that have to be made ahead of this visit, because every day lakhs and lakhs of devotees are coming to Prayagraj for Mahakumbh Mela. Till now, as many as 11 crore people have come, and in the next 1 week, we are expecting more than 7 to 8 crore more people to arrive here. So every day a lot of people are coming. Several arrangements will have to be made, and it remains to be seen what other leaders will be accompanying the Prime Minister. And what we're learning is that by the second week of the February, President of India could also come to Prayagraj for Mahakumbh Mela, but all eyes will be on this crucial visit of the Prime Minister that is on February 5th, Amita. All right, so it's on the 5th of February that the Prime Minister is expected to take the holy dip. As far as the ongoing Mahakumbh is concerned, we are looking at one Amrit Snan that has already taken place on the occasion of Makar Sankranti. We are looking at the next one that will be happening on the 29th, which falls on the Mauni Amavasya. But however, when it comes to the Mahakumbh and Mahabharat, that is also simultaneously taking place ahead of the Prime Minister's visit. The Congress party seems that the politicization is now being done when it comes to UP Congress, and its members are also expected and are planning rather to take the holy dip on the same day as that of the Prime Minister. So that remains an interesting twist on part of political developments that we are looking at. Let's listen into a Congress leader on what they are saying as far as their upcoming plans to take the holy dip is concerned. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश श्री अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन 5 तारीख को महाकुंभ में जाएंगे, स्नान करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब एक आम श्रद्धालु की तरह वहां जाएंगे, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं, ताकि वहां बाकी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। हमारा लक्ष्य है कि हम जाएं वहां पर, उस भीड़ का हिस्सा बने जो सारे लोग पूरे देश से, पूरी दुनिया से वहां पर आए हैं। फखरुल हसन चंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। सर, बताया जा रहा है प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं महाकुंभ 5 तारीख को आने वाली फरवरी में। उसी दिन यूपी कांग्रेस की तरफ से भी जो उनके लीडर्स है वो भी जाने वाले हैं। क्या समाजवादी पार्टी और उनके नेता भी ऐसा ही कोई प्लान कर रहे हैं महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाने के लिए? देखिए, हम राजनीतिक दल हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि जो जनता के हित है उनकी आवाज को हम उठाते रहें। धर्म बहुत आस्था का विषय है। हमारे नेता कभी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, रोज पूजा करते हैं, लेकिन हमारी कभी फोटो तस्वीर नहीं आती। रोज गाय को चारा भी खिलाने जाते हैं तब भी उसकी कोई तस्वीर नहीं आती। तो वो निजी विषय है कि वो कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे। वो जाते हैं, वो आपको मीडिया के माध्यम से पता भी चल जाता है। तो सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का जो लोकतांत्रिक अधिकार है हम उसकी चर्चा करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे कि देश के क्या हालत हैं, देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के जो मुद्दे हैं। हमारी जिम्मेदारी है लोकतांत्रिक कि हम उन विषयों को उठाएं, उन मुद्दों पे उठाते रहेंगे। जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के कुंभ जाने का सवाल है तो वो उनके निजी आस्था का विषय। बिल्कुल जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। वो कोई राजनीति का विषय नहीं है, उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। दिनेश शर्मा जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार है कि कब वो कुंभ जाएंगे, वहां पे डुबकी लगाएंगे। बताया जा रहा है कि उसी दिन यूपी कांग्रेस की तरफ से भी उनके नेता यही प्लान कर रहे हैं कि उसी तारीख को वो भी डुबकी लगाने जाएंगे। तो मनाही कहाँ है, डुबकी लगाएं, इतना बड़ा नदी है और मैं समझता हूँ शायद 60 किलोमीटर की परिधि में स्नान हो रहा है। तो 60 किलोमीटर में कहीं भी उनका तो ज्यादा ज्यादा 5 फुट 6 फुट के होंगे। तो कहीं भी नदी में जाकर स्नान उस दिन भी, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, कई करोड़ों लोग उस दिन स्नान करेंगे। तो जरूरी थोड़ी कि प्रधानमंत्री जी को रोक के स्नान करें। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये सनातन को रोकने वाले प्रधानमंत्री को भी रोकने का ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, उन्हें डर है कि शायद उन्हें रोका जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी उसी दिन आएंगे तो वीआईपी मूवमेंट होगी। नहीं, कहाँ रोका जाएगा? प्रधानमंत्री जी अपनी जगह स्नान करेंगे जहाँ करना है और ये दूसरी जगह जहाँ इनको करना है वहाँ करें जाके। अभी तक तो कहीं वीआईपी मूवमेंट में कहीं किसी को रोका नहीं गया है। इस प्रकार की अनर्गल बात करना मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। ये लोग कुंभ को टारगेट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी और ये जो कांग्रेस पार्टी है। इनको सबसे बड़ी जो चिंता है वो वहां पर जाति का विभेद भूलकर सारे सनातनी एक साथ स्नान कर रहे हैं, मिल रहे हैं और अपने हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था निखर कर आ रही है। ये इनका दर्द है, इसलिए ये कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। कहीं न कहीं किसी मकसद से कोई घटना हो जाए। दिनेश जी, हमारी बात अभी फखरुल हसन चंद जी से हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो बोल रहे हैं कि दिखाने की आखिरकार क्या जरूरत है? अगर आस्था की बात की जाए तो वो निजी मामला होता है। वो ये सब करते हैं, उनकी पार्टी के नेता भी करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते, दिखाते नहीं है, फोटोज नहीं डालते। इनके उपराष्ट्रपति एक मुस्लिम थे। सब स्वागत धर्म को अपना पालन करने के अधिकार है। वो हज करने गए थे, किसने रोका? नहीं रोका ना किसी ने। कोई कहता कि उपराष्ट्रपति हज करने क्यों गए? उनका अधिकार है, वो मुस्लिम है तो उनका धार्मिक अधिकार है, उनके पास सुरक्षित है। मोदी जी हिंदू है, सनातनी है तो उनका धर्म सुरक्षित है। क्या प्रधानमंत्री होने से वो सनातनी नहीं है? ये है मिथ्या है और मैं समझता हूँ ये अपरिपक्व लोग इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। हर व्यक्ति को, चाहे वो कितने बड़े पद पे हो, अपनी धार्मिक आस्था का प्रतिपादन करने का उसको पूर्णतः अधिकार है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की सुव्यवस्थाएं कुंभ में हुई हैं, अभी मैं कुंभ से ही बोल रहा हूं, तो ये जलन है दूसरे लोगों को। अभी मुझे पंजाब के कुछ दूसरे दल के विधायक और उनके साथ के साथी मिले कुंभ में। हाँ, उन्होंने मेरे साथ फोटो भी खिंचाई और उन्होंने कहा कि साहब हम तो पंजाब में आपकी विरोधी पार्टी के हैं, लेकिन आज यहाँ देखकर तबीयत खुश हो गई। इतनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ जाति धर्म छोड़कर लोग यहाँ पर एक साथ खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ी बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अच्छी नहीं लग रही है। वो स्नान करें, उनका स्वागत है। आदरणीय राहुल जी आए, सोनिया जी आए, प्रियंका जी आए, उनके बच्चे आए, वाड्रा जी आए, सबका स्वागत है। सबको अपना धार्मिक, अगर वो हिंदू धर्म को मानते हैं तो आए, नहीं मानते हैं तो भी ना आए। लेकिन अब उनके लोग कि प्रधानमंत्री ना आए, योगी जी ना आए। अरे भाई, आप लोग तो ये करते रहे कि नेहरू जी गए थे, कांग्रेस के प्रथम जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे कुंभ में, लेकिन बगैर नहाए वापस चले आए थे। तो ये वही चीज है, वो उसी कांग्रेसी संस्कृत के लोग हैं।
चलिए, यूपी कांग्रेस के जो नेता है वो बताया जा रहा है कि उसी दिन आने का वो सोच रहे हैं जिस दिन प्रधानमंत्री भी डुबकी लगाने का जो बताया जा रहा है कि 5 फरवरी के दिन ही वो महाकुंभ जाएंगे। धन्यवाद आपका दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय आलोक ऑफ द बीजेपी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद अस। अजय आलोक, द समाजवादी पार्टी सेज दैट व्हाट हैपेंस व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ होली डिप, व्हेन इट कम्स टू द पीपल, द रियल इश्यूज, दे बिलीव दैट व्हाट हैपेंस फॉर द पीपल व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? दिस इज द टेक ऑफ द समाजवादी पार्टी। Well, we never objected when Samajwadi Party or the Congress Party just spray themselves with the Jam ka pani or with the holy water. What objection they are having with Kumbh? भाई राहुल गांधी छीटे ना अपने ऊपर होली वाटर और जमजम का पानी, सब अखिलेश यादव छीटे, हमें कोई दिक्कत नहीं। The issue is not that. The issue is they are absolutely gone berserk and jealous. And if you talk of governance, the reflection of governance is there in Mahakumbh. Where more than 10 crore people have taken a dip, and it's such an organized situation, and it's a completely well under control with all the security measures in place, with each and every facility in place. They are unable to digest because they don't know governance. सरकार चलाना किसको कहते हैं, व्यवस्था क्या होती है, they are just out of it. So my wish to them is, please जाइए, अपना जमजम का पानी छीटिए अपने ऊपर, होली वाटर स्प्रे लीजिए, कुंभ की बातें ना करें, ज्यादा बेहतर हो। All right, sir. Thank you very much, Ajay Alok, for joining in. Of course, reactions that have been coming in, all part of the BJP, the Samajwadi Party and the Congress Party. However, it is being said that the Prime Minister will also be going to the Mahakumbh. Let's talk about